So purpose of the seminar to create awareness among the devotee, cyber security, common cyber threats, and a defense strategy, followed by the hands-on activity question and Q&A. More about the guest speaker, Dr. Pinaki Bhattacharya is a distinguished cyber security expert, strategic advisor to Indian Law Enforcement Agency, renowned for his unparalleled expertise in digital forensics, cyber intelligence, national security, with two PhD from Harvard University. He has been working toward fortifying Indian digital infrastructure. So let's welcome loudly and proudly by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. And Mataji is also, she's very professional. She's a business consultant. Huh? Business coach, and she's also very professional. So welcome you both. Thank you. So over to you. Hare Krishna, you come now. Here. For giving such a wonderful opportunity. That's what I would say. Mic will give, Prabhuji. Record, can record? Yeah, please. Fine. Cool. Hare Krishna to everyone. First of all, Dandavat Pranam Prabhuji, and Pranam to every one of you. We are Grihi. We are not as lucky as you all are, but still we try. Anyways, starting with cyber security. Now, let's understand why are we doing this? Why do we need to know this? First of all, this is the age of digital knowledge. This is the age wherein we are into social networking, we are using WhatsApp, we are using smartphones and whatnot. So when we are using smartphones and all our phone numbers are connected to Aadhaar card, PAN card, bank account number, yes, there is a threat. The threat is not that the government is not helping us on that, or the government is not taking steps on it, but the threat is people or scammers are getting smarter. How so? By our help. Trust me, if we are careful enough, we can negate 90% of the possibility of financial fraud, identity theft, and everything. Why is it important to be mindful? Because when we are mindful, we negate the chances. We don't give the scammer the chances. They use our lack of mind. They use some threat strategies, some psychological tricks, and we fall prey to them. That's how it works. So first of all, this is an awareness class. Trust me, an awareness class is something I would say, I am here to make you aware of it. I will provide you some tips and trips of the thing, but it will not guarantee 100% success if you do not update yourself to the same. Now, पहले तो हम differentiate कर लेते हैं cyber crime और cyber threats. I hope all are comfortable in Hindi and English mixed. Yes. Let's keep it that way. So cyber crime और cyber threat में आपको क्या लगता है, क्या difference है? Cyber crime हमेशा पैसे लेना नहीं होता. ये हो सकता है कि आप मान लीजिए आपका कोई पिक्चर लिया, पिक्चर लेने के बाद किसी और का पिक्चर बिठा के misused it. It happens in cases of Matajis, in cases of other activities as well. Loan recovery scam में भी ये होता है. What happens when there is a cyber crime? The cyber crime, after it's committed, it goes straight to cyber section of the police. So उसमें we are not interested in going deeper because we are not completing BNS, we are not completing IPC or CRPC, nothing. We are just doing a normal understanding of what cybercrime is and what are cyber threats. So cyber threats, we will dig deeper into cyber threats.
When we talk of cyber crimes and cyber threats, there are some, these are some, I would say, strongest divisions in terms of cyber crimes, like phishing. What do we understand? Phishing मतलब क्या होता है normally? Normally phishing, मछली पकड़ना. Correct? So phishing is exactly that. Trust me when I say phishing in cybercrime is same as phishing in a pond. What we do is we get some bait for the fish, we do it. We take a lure and then put it in a pond. Now what the scammers does, it takes a snapshot or identical picture of a known website, let's say google.com, and creates the same type or the identical page with different font or with different types of malicious content, and we fall prey to that. Now there are another types of phishing that I would like you to pay close attention to. We all receive some messages through Rummy Circle. We all use iPhone or Android, right? लेकिन उसमें RCS मैसेज सबका ही चलता है, जो नॉर्मल मैसेज होता है गूगल का. उसमें रमी सर्कल ये वो उसका मैसेज आता ही है, और उसमें एक लिंक मैंडेटरी होता है. Am I correct? Now where the link takes you, the link takes you to a site where they want us to be in. Why? Because they need our data. Why do they need our data? Because they sell it. It's not always phishing is harmful, as in they will try to take money and all that, but they need our data for it. Phishing is important to track our data. Now, in terms of data, we need to understand that all our data contains our phone number, which is very important nowadays. Once we click onto any link, we are compromising our IP address as well. So, our IP address, our phone number, and also the device address, the MAC address I'm talking about, is compromised. Once these three are in, and if at all we have a very educated person on the other side handling a computer with machine language, yes, I am able to hack your system or the Wi-Fi that you are sitting in, even sitting halfway around the globe. दुनिया के दूसरे छोर पे बैठ के भी आपके घर का वाईफाई हैक किया जा सकता है, just by these few things. Please understand, this is not something that I am trying to scare you, but I am trying to make aware कि कोई भी unknown link बिना जाने, बिना किसी known number से आए हुए click ना करें. अभी we will talk about hacking. People say that hacking is something which is illegal. Yes, it is. But we do have a term known as ethical hackers. Why ethical hackers are needed? उनकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मान लीजिए मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो मेरे कंपनी ने एक वेबसाइट बनाया. अब वो हैकर प्रूफ है कि नहीं, अगर है तो कितने लिमिट तक है, कितने लिमिट तक वो झेल पाएगा, इसे टेस्ट करने के लिए भी तो हैकिंग जानना ज़रूरी है. So we call those groups ethical hackers. Now, hackers are nothing to be scared of. Hackers are educated people. Understand the terms hackers and scammers. दोनों में फर्क है. Hackers are educated people and essentially educated people, because without education and logical understanding of machine language, you will not be able to hack anyone. Please understand, hacking करने के लिए coding और machine language का understanding होना बहुत ज़रूरी है. So when we say hacking, yes, we can hack into computers, we can hack into mobile phones, we can hack into anything that connects online. Now, people may ask, आप लोग ये पूछ सकते हो कि offline hacking possible है? हाँ है. लेकिन offline hacking के लिए मुझे physical वहाँ present रहना पड़ेगा. Online hacking मैं आधी दुनिया पार या कहीं भी बैठ के कर सकता हूँ अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो. अगर आप नहीं हो, मान लीजिए इस्कॉन प्रभु जी बोल रहे थे कि हमारे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उनमें हिसाब, डेटा, ये सब स्टोर होता है. तो आर दोज वल्नरेबल फ्रॉम आउटसाइड?
No, they are not. They can only be hacked physically. We will either need Ethernet cable or some pen drive with some malicious codes, and then we will be able to get the data in. ये हो गया hacking के बारे में छोटा. अब the most important part which I feel is most important because it's known as ransomware. अच्छा, ransom मतलब क्या समझते हैं हम लोग? What is ransom? एकदम सही, 1980s के मूवी में आता था, इतना ransom चाहिए, right? So we call it ransomware. Why? Because I capture something and then ask money from you. What do we capture? We capture your device. Let's say we are recording on an iPhone. I use a ransomware, and a ransomware, what it does, it locks your iPhone and gives you a message. On the display of the message, it shows that here is the account number, you need to deposit 30,000 bitcoins. That's it. Now, why do you think I'll pay? Because I have all my data on the phone, I have all my contacts on the phone, and that person who is taking a ransom is capable enough to delete it clean. So, हम लोग ransom इसीलिए पे करेंगे क्योंकि ये ransom पे करने से मुझे अपना डेटा, अपनी पिक्चर्स वापस मिलेगी, ये हम सोचते हैं. लेकिन behind a ransomware, if the dirty game is played, that you see a screen wherein only account number is displayed और कितना amount देना है वो कर रहा है, लेकिन पीछे ये काम चल रहा है कि आपका सब बैकअप हो गया है ऑलरेडी. सो ransomware is just a front. और इसीलिए मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, और इसका कोई तोड़ नहीं है, बाय द वे. Only the person who has created a ransomware can break it, or it has to be a well-equipped, equivalent or higher level coder or programmer or hacker, as you may say. But उसको उसका time चाहिए, because the way I create a ransomware will be different from the way you create it. So मेरा काम करने का तरीका, सलीका, कोड, लैंग्वेज जो मैंने यूज़ किया है कोडिंग के लिए, वो जानने के बाद जब तक मैं करूँगा तब तक मेरा डेटा तो गायब है या कॉपीड है. अब आप पैसे दो, अच्छी बात, नहीं दो तो आपका डेटा तो वैसे ही जा चुका है. ये रैंसमवेयर कैसे आते हैं? हम पूछ सकते हैं कि ये रैंसमवेयर हमारे डिवाइसेस में कैसे आते हैं. पहली बात, रैंसमवेयर खुद चल के नहीं आता. We visit many websites. Those websites are not to be visited normally. We do. Like any betting sites. Like मेरे को क्रिकेट का स्कोर देखने हुआ तो without going to Jio Hotstar, I go into any other websites. एक पॉपअप आ रहा है इंस्टाग्राम में, उसमें मैंने क्लिक कर दिया कि नया मुझे ईयरबड्स चाहिए या स्मार्ट वॉच चाहिए, तो उसमें मैंने क्लिक कर दिया, वो ले जाके किसी एडवर्टाइजिंग साइट में डाल दिया, एंड एडवर्टाइजिंग साइट में मेरे को रैंसमवेयर मिल गया. इट इज पॉसिबल. नाउ along with the ransomware, please understand there is a concept of malware. What do you mean by malware? Let me tell you, ये शब्द जो आया है ये malicious शब्द से आया है. तो हम malware का क्या समझें? What are they? Malware is like Krishna of coding. I would say so. You know, उस जैसा नटखट कुछ नहीं है. तो वो आपके सिस्टम में घुसेगा, इतना ऐड दिखाएगा कि आप सिस्टम खुद बंद करके रख दोगे, या फिर आप कुछ खोलना चाहोगे, कुछ और खुल जाएगा. तो आई वुड से कि ये आई कैन कंपेयर दैट विथ कृष्णा इटसेल्फ. इतना नटखट तो कोई हो नहीं सकता. दैट्स वाई वी कॉल इट malware, malicious intention. अच्छा, अब होता है लास्ट में फिनेंशियल फ्रॉड. हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिलेटिव्स में, या फिर हम लोग खुद कभी ना कभी इसका शिकार हो चुके हैं. करेक्ट? लेट्स अंडरस्टैंड financial fraud in a deeper perspective, because this will save a lot of things, a lot of peace of mind, a lot of money, everything. Now we all have been here acquainted with Manoranjan Prabhu, I guess. Yes. Manoranjan Sutar. So he lost probably 1 lakh
35,000. हाँ, more or less. I am dealing with the case. So that is a different issue, but just let me give you how. Let me just tell you how. मनोरंजन प्रभु एक दिन एक छोटा सा APK फाइल रिसीव करते हैं. नाउ व्हाट इज APK फाइल, पहले ये बताना ज़रूरी है. APK फाइल इज समथिंग, जब हम लोग कंप्यूटर ऑलमोस्ट एवरीवन यूज़ किए हैं, राइट, कंप्यूटर और लैपटॉप. तो हम लोग ऑफिस इंस्टॉल करते थे पहले, MS ऑफिस या कोई और सॉफ्टवेयर होगा, जूम इंस्टॉल किया, वो आता था. और ये चीज़ APK फाइल होता है एंड्रॉयड के लिए, माइंड इट. iOS के लिए DMG होता है. तो हम DMG में नहीं जाते हैं बिकॉज DMG इज अ हाई लेवल थिंग. वी आर गेटिंग इनटू APK, क्योंकि प्रैक्टिकली फिनेंशियल फ्रॉड जो होता है ना, वो हैकर्स नहीं करते, स्कैमर्स करते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग अ स्कैमर, इट मीन्स दैट वो हमारे 3.5 साल के कृष्णा ने जो समिति बनाई थी ना चोरी की, इट्स समथिंग लाइक दैट. उनको चांस मिला तो वो लूट लेंगे. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये APK फाइल भेजते हैं. APK फाइल दो तरीके के भेज सकते हैं. एक APK फाइल ऐसा भेजेंगे कि आपका डिवाइस का रिमोट ले लेते हैं. रिमोट मतलब दे विल कंट्रोल इट फ्रॉम आउटसाइड, you will not be controlling it. How? They use softwares like TeamViewer, remote devices. These are the name of the softwares commonly used. There are other softwares as well for remote connections. Now, there are other types of frauds as well through APK. How? Let's say we all have our bank accounts online, correct? तो ये जो बैंक अकाउंट है वो किसी ना किसी बैंक में है और किसी ना किसी ऐप से एक्सेस होता है. अभी ये बैंक अकाउंट एक्सेस करने के लिए हमने कोई ना कोई ऐप इंस्टॉल किया है. वो ऐप का मान लीजिए HDFC का है. हम HDFC का लुक अलाइक रेप्लिका ऐप बना देते हैं. उसका कोडिंग डिफरेंट होता है. आप उसमें लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो उससे मेरे को क्या मिला, आपका अकाउंट नंबर, पासवर्ड. तो वी आर हाफ डन, नॉट वी आर फुल. पूरा खाना अभी तक बना नहीं है, वेट कीजिए, बन रहा है. तो बनने के लिए हमें चाहिए आपका OTP. और OTP कैसे मिलता है? अभी OTP मिलता है, आप लिंक में क्लिक करोगे तो आपका जो कॉल है वो डाइवर्ट हो जाएगा, *401. दैट मीन्स योर डेटा इज डाइवर्टेड, दैट मीन्स योर OTP इज डाइवर्टेड, मैसेजेस आर डाइवर्टेड. अब तीसरा एक अच्छा चीज होता है कि सर आपका एक पार्सल आया है, आप उसे अगर नहीं लेना चाहते ना, नीचे मैं एक नंबर दे रहा हूँ, आप उसको डायल कर देना. उस नंबर का एक फॉर्मेट होता है, द स्कैमर्स फॉर्मेट. व्हाई? द स्कैमर्स फॉर्मेट विल स्टार्ट विथ समथिंग लाइक, जस्ट अ मिनट, इट्स ओके. द स्कैमर्स फॉर्मेट विल स्टार्ट विथ स्टार. Preferably they will use this one and then number. Then hash. What it does, anyone? Redirect the message. Yes, not only messages, your calls, your messages, your data, everything. So just ये वाला स्कैम सबसे इजी है. मैं आपको फ़ोन करके बोल दूं कि आप, हम सभी मंगाते हैं अमेजोन से, जोमेटो से, कुछ ना कुछ, राइट? सो इट्स वेरी इजी. आपका एक पार्सल आया हुआ था, आप अगर नहीं लेना है या आप घर में नहीं है तो ये दबा दीजिए. अब बिना देखे काम करते करते ये कर देंगे. वंस इट्स डायल्ड, आई हैव ऑल योर एक्सेस. नाउ अच्छा, should I tell you how to stop this now or should I cover it later? What do you suggest? अभी बोल दूं? मुझे नंबर में जैसे कि अगर मैंने ऐसे भेज दिए, मैंने अपना नंबर डाल दिया, नहीं, अपना नंबर नहीं होता ना, इसमें होता है हैकर्स का नंबर या स्कैमर्स का नंबर. मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे कि मैं A फोन से मैंने B फोन का नंबर डाल दिया, तो A फोन से जो भी करूँगा B फोन में आएगा ही. प्रैक्टिकल मैं कर सकता हूँ. यस, लेकिन वो नहीं है जो आप सोच रहे हो. ये ऐसा नहीं है कि स्क्रीन मिरर हो जाएगा, मैं अपने माता जी का या अपने भाई का फ़ोन देख सकता हूँ, वैसा नहीं है. वैसे के लिए थोड़ा और सीखना पड़ेगा, एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल.
बट ये जो स्कैमर का नंबर है, इससे हम क्या कर सकते हैं, उसका फ़ोन में जो कॉल आएगा वो उसके फ़ोन में ना आके मेरे पास आएगा, उसके फ़ोन में जो मैसेज आएगा वो उसके फ़ोन में ना आके मेरे पास आएगा। मतलब मैं ये तो कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हो, लेकिन इट्स इलीगल बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो। हाँ हाँ, ये तो बहुत नॉर्मल हो गया मतलब। ये बहुत नॉर्मल हो गया, लेकिन ये बहुत नॉर्मल भी चीज़ इलीगल है। वंस यू आर कॉट, मैं BNS बाद में कवर करूंगा, बट वंस यू आर कॉट यू विल बी प्रोसेस्ड एज अ नॉर्मल क्रिमिनल। देयर विल बी नो मर्सी ऑन मैं ट्राई कर रहा था ये नहीं, नो नथिंग। सर वाई मतलब गवर्नमेंट ने क्यों अलाउ है ये, तो जो है ऑपरेटर्स इसको ब्लॉक कर सकते हैं ना, *401 स्टार करके कोई भी करे तो ये कॉल फॉरवर्डिंग डाइवर्टिंग ऑपरेटर्स के हाथ में होता है। व्हाई देयर आर नो रेगुलेशंस के मतलब वो हटा दें इसी को। चलो प्रभु जी, आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। आई हैव अ टैब, उतना बड़ा टैब में फ़ोन करना, हाउ विल इट फील? तो मैंने क्या किया, उसका जो नंबर है, डायलिंग नंबर है, उसको मैंने डाइवर्ट कर दिया अपने फ़ोन पे। फ़ोन तो मैं रेगुलर पिक करता हूँ, उसमें कोई कॉल आएगा तो मेरे को मिल जाएगा। सो देर इज़ अ प्रैक्टिकलिटी ऑल्सो टू इट। पीपल आर ऑल्सो मिसयूजिंग इट, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन मिसयूज़ तो गीता का भी किया जा सकता है। इफ़ इट सेज कोई मरता नहीं है and the criminal kills. So that is not the way to interpret Gita. Same way, that is not the way to utilize this. अभी हम लोग ये चेक कैसे करें? दिस इज अ प्रोसेस, स्कैमर ने कर दिया कांड। अभी हमको कैसे पता चलेगा कि वी आर ऑलरेडी हैक्ड और नॉट? देयर इज अ कोड *#67#. Try it, take out your mobile phone and try this. No, it will tell you whether your calls are diverted, yes or not. *#67#. डायल करिए, it will show MMID code started. आ गया? All disabled? Yeah. Good. किसी का फॉरवर्डर है तो बताना प्लीज। इसमें सर सिर्फ वॉइस दिखा रहा है, SMS और वो नहीं दिखा रहा। वो नहीं दिखाएगा। इट इज नॉट फॉर यू टू सी, बट एक्चुअली यू कैन यूज इट। मतलब अगर ऐसा हो सकता है सिर्फ उसने SMS फॉरवर्ड कर दिया कॉल फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो फिर ये हो सकता है। इसके जगह पे 401 नहीं होगा फिर। आई एम नॉट टेलिंग यू द एग्जैक्ट कोड्स, 401 नहीं होगा उसमें, उसमें कुछ और होगा। हाँ हाँ, मेरा में भी आता है सक्सीडेड, डिसेबल डिसेबल डिसेबल, पक्का। All I wanted to know is if there is anything that is forwarded, not forwarded or disabled, that is perfectly fine, you are safe. Now what if some of your friends discover that हमने जो किया था वो forwarded नहीं, वो actually में आ रहा है कि it is forwarded, हम में आ रहा था not forwarded, correct? हमने जब किया हम में आ रहा था not forwarded और disabled, किसी में आ सकता है forwarded, आ सकता है। What to do then? उसके लिए क्या? उसके लिए दो तरीका है, मैं छोटा तरीका बताता हूं। #*0002#. What it does is it disables the link that the scammer has created. मेरे में आ रहा है कॉल फॉरवर्डिंग। No, not forwarded. Call forwarding, not forwarded. So this is the code which will break the link. No, please. It's not needed. Because everyone has seen that it is not forwarded, right? Or disabled in your case, because you are using iOS, same as mine. So in that case, it's not needed. Agar by chance किसी में problem हो, तो this is the code we should dial in. Now, there is a long way. Long way is अपने अपने डायलर के सेटिंग्स में जाएंगे, फिर वहाँ से सर्विसेज में जाएंगे, फिर वहाँ से एक्स्ट्रा एडिशनल सर्विसेज में जाएंगे, फिर वहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग को डिसेबल करेंगे। दिस इज द लॉन्गेस्ट वे बट सेफ। इफ यू डोंट रिमेंबर दिस, यू कैन रिमेंबर दिस। अपने अपने डायलर के सेटिंग्स में जाना है, फिर वहाँ से एडवांस सेटिंग्स, फिर वहाँ से कॉल फॉरवर्डिंग डिसेबल्ड, दैट्स इट। अब ये फिनेंशियल फ्रॉड का एक स्कैमर सेक्शन हो गया।
अब कुछ और स्कैमर सेक्शन बताते हैं, इनका तोड़ ना हमारे पास है ना गवर्नमेंट के पास. ओके, हैव यू हर्ड कि आपके पास एक अननोन नंबर से कॉल आया व्हाट्सएप में और आपका बैंक खाली हो गया? हैव यू हर्ड दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, बराबर हो सकता है. Yes, they can. Okay. There are things that we use which are very essential nowadays, which is known as WhatsApp. Correct. What it does, बिना WhatsApp के हमारी ज़िंदगी चलेगी नहीं और हमें चलाना भी नहीं है. But what it does is, आपके पास मेरा नंबर नहीं है, मैं अगर स्कैम करना चाहूँ तो आपका नंबर में मैं WhatsApp में कॉल करके I can get your IP address. And with the IP address, everything is possible. So there are people who keep on saying कि मैं WhatsApp call कर रहा हूँ, मैं WhatsApp call कर रहा हूँ. So known people भी Known people is okay. Known people is okay because at least you know who is calling. If scam happens, आप उनके नाम पे डायरी कर सकते हो. लेकिन अननोन नंबर है तो कौन है वो? अब इसके जगह पे मैं आता हूँ. आप अपना WhatsApp निकालिए फोन पे. Yes please. WhatsApp पे अगर unknown call आए तो one should not pick it या आएगा ही नहीं. unknown नहीं आएगा. आएगा ही नहीं. Let's do one thing. Let's take up your own WhatsApp and go to settings. WhatsApp settings. नहीं आएगा. नहीं आएगा. तो पहली बात, आप सेटिंग्स में जाओ व्हाट्सएप के. सेटिंग्स में जाके नीचे एकदम देखो प्राइवेसी है. करेक्ट? हाँ, प्राइवेसी है. अब प्राइवेसी के नीचे देख, प्राइवेसी में क्लिक करो, उसके नीचे देखना कॉल्स आएगा. कॉल्स में क्लिक करोगे, देखो साइलेंस अननोन कॉलर, उसको ऑन कर दो तो अननोन कॉलर का कॉल आएगा नहीं. हाँ, तो अभी और नहीं आएगा. ये ऑन कर लीजिए और नहीं आएगा. ये अगर आप ऑन करोगे तो अननोन नंबर व्हाट्सएप में कॉल नहीं कर पाएगा. नॉर्मल कॉल तो आएगा. अब एक और चीज बताता हूं, ये ऑन रहेगा. सबका ऑफ रहता है लेकिन ये ऑन करना होता है. और आपने सिम कब लिया था? लास्ट 5 साल पहले, तो ऑब्वियसली वो ऑफ रहेगा. अभी जो नया सिम है जिसका ऑथेंटिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, उन सारों में साइलेंस अननोन कॉलर ऑटोमेटिकली ऑन रहता है. दैट इज टायर 1 सेफ्टी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टायर 2 सेफ्टी. अब कॉल से हम बैक जाएंगे, एक स्टेप बैक जाएंगे. प्राइवेसी में ही रहेंगे लेकिन एक स्टेप बैक जाएंगे. एक स्टेप बैक जाने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा एकदम लास्ट में, एडवांस्ड. उसमें 3 ऑप्शन है और तीनों के तीनों ऑन रहने चाहिए. हाँ, तीनों ऑन रहने चाहिए. ऑन रहने चाहिए, ऑन कर दीजिए. क्यों ऑन करने चाहिए ये पहले आप पढ़िए और समझिए. आप में वहां दिखा रहा है आईपी एड्रेस का आपको दूसरे का पता नहीं चलेगा. मतलब मान लीजिए आपने मुझे कॉल किया, करेक्ट? आपको मेरा आईपी एड्रेस नहीं पता चलेगा. सी, यू आर ब्लॉकिंग इट. आप जाइए सेटिंग्स में, फिर प्राइवेसी में, एडवांस्ड में नीचे. iOS यूज कर रहे हैं ना आप? एडवांस. हाँ, तीनों ऑन करना चाहिए. ये तो है एडवांस्ड, एंड दिस ऑल 3 शुड बी ऑन. वाई डिसेबल लिंक प्रीव्यूज? अब क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इंटरेस्ट कम हो रहा है. डू आई थिंक सो? ताकि मेरा क्वेश्चन है, अगर हम लिंक प्रीव्यू डिसेबल कर दें, अगर कोई इंपॉर्टेंट लिंक भेजता है, जैसे कोई गूगल मीट का लिंक हो गया या कुछ और, मैं भेजूंगा ना, मेरा नंबर आपके पास सेव होगा. आप मान लीजिए कोई और प्रभु जी भेजते हैं जिनको हम पहचानते भी नहीं, उनका लिंक प्रीव्यू आप खोलना चाहेंगे? क्यों नहीं चाहेंगे? अब मेरे को एक चीज बताइए, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द इंग्लिश. लिंक प्रीव्यू, लिंक प्रीव्यू, व्हाई इज इट प्रीव्यू? कैसे देख सकते हैं? आपका सिस्टम कैसे देख रहा है? इज इट नॉट एक्सेसिंग इट? इज इट नॉट एक्सेसिंग इट? अगर मैं नहीं देख पाता, प्रीव्यू देख रहा हूं. प्रीव्यू का मतलब ट्रेलर होता है, मूवी का ट्रेलर.
मूवी का ट्रेलर तभी बनता है जब मूवी बन चुकी होती है. Am I correct? सेम वे में लिंक तभी प्रीव्यू दिखाता है जब हम लोग सिस्टम को अलाउ करते हैं कि भाई तू देख के आ पहले, उसके बाद मैं देखूंगा. ठीक है. जैसे लिंक प्रीव्यू में हम लोग ऑथेंटिकेशन भरते हैं कि भैया लिंक प्रीव्यू हम लोग देख लें, मतलब मेरा सिस्टम तो हो गया कॉम्प्रोमाइज. मतलब मैंने खाना तो स्टार्ट कर दिया, अब पूरा खाऊं कि आधा खाऊं? खा तो मैं चुका हूं, तो पचाना है मुझे ही है. प्लीज अंडरस्टैंड ऑल दीज लिंक्स आप पढ़ के एक्नॉलेज करो. देयर आर थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड वाइल डूइंग इट. देयर इज वन मोर थिंग, आपका आईपी एड्रेस शेयर नहीं होता, लिंक प्रीव्यू लॉक रहता है, और देयर इज ऑनलाइन एडिशनल सेफ्टी ऑफ व्हाट्सएप. दो वी से व्हाट्सएप इज सेफ. हाउ? एंड टू एंड एनक्रिप्शन है. एनक्रिप्शन वी ऑल अंडरस्टैंड, राइट? करेक्ट. एनक्रिप्शन अगर हम समझते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. उसका उपाय है, एंड यू शुड ऑलवेज सिक्योरिटी सेक्टर में यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा. आप खोल के दीजिए प्लीज. ये एडवांस्ड में आना चाहिए. सिक्योरिटी नोटिफिकेशंस. आप पहले जाएंगे सेटिंग्स में, और उसके अकाउंट सेक्शन में पहला ऑप्शन सिक्योरिटी नोटिफिकेशंस, कीप इट ऑन. वाई डू यू नीड इट ऑन? मान लीजिए मैंने अपना डिवाइस खो दिया भाई, आज मेरा डिवाइस चोरी हो गया, कल वो किसी और को मिला, उसने मेरा वाला व्हाट्सएप तो यूज़ नहीं कर पाया, मेरा डिवाइस लॉक था, iOS था, चलो उतना दिमाग नहीं लगाया, मेरा सिम कार्ड लेके दूसरे डिवाइस में लगा दिया और उससे व्हाट्सएप चालू कर ली. हो ही सकता है क्योंकि सिम कार्ड फिजिकल उसके पास है. तो वो कभी भी सेम नोटिफिकेशन नहीं देगा. ईच डिवाइस हैज इट्स ओन सिग्नेचर. डिवाइस जब आप चेंज करते हो, आप देखते हो, मैं जब आप डिवाइस चेंज करूंगा तो मेरे पास, आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा इसके बाद कि द फॉलोइंग डिवाइस हैज बीन चेंज्ड. यू विल अंडरस्टैंड कि उसने इधर डिवाइस चेंज किया है, और यू विल अंडरस्टैंड that now my data is not safe at least for a day when I verify that that person is not the same. मैंने वेरीफाई कर लिया तो मेरा डेटा सेफ है भाई, नहीं है तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. ठीक है. व्हाट्सएप में ये चारों चीज अगर आप कर लेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा टू बी सेफ ऑनलाइन. अच्छा बताओ कौन सा समझ में नहीं आया? सिक्योरिटी. अच्छा, पहली बात, मैंने आप मेरे को जानते हो, हम दोनों व्हाट्सएप में कनेक्टेड हैं, एंड वी हैव सेव्ड आवर नंबर. इफ वी क्लिक ऑन दिस, इट विल शो एंड टू एंड एनक्रिप्शन. सपोज यू लूज योर फोन ऑन द वे गोइंग टू योर होम, यू लूज योर फोन, ही इज नॉट एबल टू यूज योर डिवाइस. आपने पासवर्ड लगा रखा है, उतना दिमाग नहीं करना है उसे, उसने आपका सिम कार्ड निकाल के अपने डिवाइस में लगा के व्हाट्सएप ऑन कर दिया. कोई कर ही सकता है ना, कर ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो उसमें आप कैसे बचोगे? मैं कैसे बचूंगा? आप तो गए, लेकिन मैं कैसे बचूंगा? मैं तो आपके साथ कनेक्टेड हूं. मुझे आएगा एक नोटिफिकेशन, छोटा सा लिखा हुआ नोटिफिकेशन, नहीं आएगा बाय द वे. जब मैं खोलूंगा वहां देख पाऊंगा द सिक्योरिटी कोड हैज चेंज्ड फॉर दिस डिवाइस हैज चेंज्ड. इससे मुझे यह समझ में आ जाएगा कि आपने इधर डिवाइस नया खरीदा है. हाँ, चैट के ऊपर लिखा हुआ आएगा. ठीक है, वो आप देख के समझ जाओगे कि इधर मैंने डिवाइस चेंज किया है, या मेरा डिवाइस चोरी हो गया है, या कॉम्प्रोमाइज हो गया है. अब ये कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं समझाना चाहता बिकॉज इट्स बियॉन्ड माई लिमिट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई सो. हाँ, यस, योर सिक्योरिटी कोड विल बी. जो देख रहा है उसको, मतलब नाउ देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, राइट? कि वो हो सकता है नया फोन खरीदा हो सकता है किसी ने सिम कार्ड, मतलब हो सकता है आप टेररिस्ट हो और मेटा आपका डेटा सरकार को दे रही हो. हाँ, एग्जैक्टली. Yes, that is also a possibility, trust me. बट मतलब then how will he be certain कि ये this has been, मतलब After contacting the contact person, after this is just a measure
सिक्योरिटी मेजर, ये नहीं है, ये एश्योरिटी नहीं देता है कि आप किसी से बात कर रहे हो और वो फ़ोन चोरी नहीं हुआ है. नो, इट इज़ नॉट सेइंग दैट. इट इज़ सेइंग आपको मैंने सतर्क तो कर दिया था, अब आप क्या एक्शन लोगे वो उसके ऊपर है. लाइक कृष्णा ऑलवेज सेड, व्हाट यू डू इज योर बिजनेस, आई एम जस्ट हियर टू गाइड यू. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये फिनेंशियल फ्रॉड के साथ एक एक फ्रॉड आई वुड से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, आइडेंटिटी थेफ्ट. या एंड स्पेशली in case of males it's little less, in case of females it's much more. We'll come to that. First let's start with normal thing. आपका आइडेंटिटी क्या है? How would you identify yourself? आई कार्ड दिखाओगे ना, वही है आइडेंटिटी थेफ्ट. आई विल टेक योर आइडेंटिटी हाउ? बाय योर नंबर विच इज कनेक्टेड टू आधार कार्ड. या and once I have your Aadhaar card, I can change your FD nominee. I can break your FD also. I can break into your mutual funds. I can get your bank account details, withdraw money. आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड भी ले सकता हूँ. And trust me, हाँ और क्या चाहिए मुझे? आधार कार्ड से आप एक चीज़ बताओ, आधार कार्ड से पैन कार्ड रिलेटेड है, लिंक्ड है, आपने करवाया है ऑब्वियसली, तो और क्या चाहिए मुझे? वही आएगा. आधार कार्ड से मैं आप ही का सिम कार्ड ले लूंगा, आप ही के ऑपरेटर से, और वो दे भी देगा. थिंक अबाउट इट. It is same, but it is still linked to your mobile number, is it not? तो सेफ्टी कैसा? Now, सेफ्टी तब होगा जब हम लोग माइंडफुल रहेंगे. गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि आप लिंक कर लो कि आप सेफ हो. गवर्नमेंट ने बोला आप माइंडफुल रहोगे तो आप सेफ हो. अभी फिलहाल के लिए ये सोचें कि इससे बचे कैसे. मैं सिंपल तरीका बताता हूं ऐसे. ठीक है, जो मेरे आधार कार्ड के साथ, जो मेरे बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है, वो इसमें है. आधार कार्ड में क्या आएगा? ओटीपी आएगा. और बैंक में क्या आएगा? भाई पैसे आए हैं या गए हैं, पता चल जाएगा, और कुछ तो आएगा नहीं. सो दिस इज वन वे टू सेफगार्ड योरसेल्फ, and a sure short way to safeguard yourself. Now, coming to the point, what all can happen with identity theft. There are some OSINT. OSINT इसका full form है कि this is some intelligence networks through which I can access your Google even if I only have your email address. That will tell you what did you buy from Zomato, which places did you go, which hotels did you check in, what are the reviews that you posted for Amazon products, everything. Google is not fraud. The way we use Google can be fraudulent. So, as everyone said, आपके हाथ में छुरा है, उससे आप सब्जी काटो या किसी का गला, आपके ऊपर है. छुरा तो गलत नहीं है. तो प्लीज अंडरस्टैंड, फाइनेंशियल फ्रॉड्स में बहुत सारे तरीके के फ्रॉड्स हैं और नए नए तरीके के आते रहते हैं. मैं कुछ ऐसा डिस्कस कर रहा हूं कि विच इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई अमंगस्ट योर रिलेटिव्स और नोन पर्सन. हु हैज हर्ड ऑफ डिजिटल अरेस्ट? यस. एंड इफ आई मे आस्क, डिजिटल अरेस्ट कुछ होता है, हाँ या ना? होता है. अच्छा. आईपीसी, सीआरपीसी या बीएनएस, किसी भी जगह में डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है. सो इफ समवन कॉल्स यू, आई वुड से डील अकॉर्डिंगली. ठीक है, डिजिटल अरेस्ट बोल के कोई भी चीज नहीं होता है. अब डिजिटल अरेस्ट का फॉर्मेट वो लोग चेंज कर रहे हैं. कैसे कैसे? पहले तो वो बोलेंगे मैं थाने से बोल रहा हूं, चलो आपका काम हो गया, मतलब हो गया. अगर आप नहीं माने
तो आईपीएस ऑफिसर बन के फ़ोन करेंगे, एक चेयर लगा हुआ होगा, पीछे तिरंगा होगा, आप लोग मानेंगे कि वो आईपीएस है क्योंकि ड्रेस वो पहनेगा आईपीएस का, ठीक है। चलो आप उससे भी नहीं माने तो कस्टम्स ऑफिसर क्यों बोलेगा? बोलेगा आपके नाम पे ना एक पार्सल आया गया था, उसमें ना नारकोटिक्स मिला है मुझे, सो आप एक काम कीजिए, आपको हम लोग डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं 48 घंटे के लिए, आप जहां जाएंगे जो भी करेंगे हमें बताइएगा। That includes your financial transactions as well. He is watching you, trust me. He is watching everything of you. There was a Mataji, an aged Mataji, related to ISKCON, who has lost a lot of money into digital arrest. Now last, ये customs officer last नहीं था, उसके बाद एक last stage और है, judge. हमारे देश में वो स्कैमर समझते हैं कि जज को खा पी के कोई काम नहीं है, आपको डायरेक्टली फोन करके बोलेगा कि भाई हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट मी, इट इज नॉट लाइक दैट। देयर इज नथिंग नोन एज डिजिटल अरेस्ट एंड प्लीज रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम एंटरटेनिंग दीज कॉल्स एनीमोर। नाउ व्हाई स्कैमर चूज डिजिटल अरेस्ट? व्हाई नॉट दे टेक योर डेटा in other ways like phishing, hacking, ransomware? Why not? Simple answer, they are not educated. अगर educated होते तो डिजिटल अरेस्ट करके कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश नहीं करते, तो वो दूसरे तरीका सोचते हैं जो इजी हो, प्रॉफिटेबल हो एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम विथ नॉमिनल एफर्ट. Now this is financial fraud stage 1. Stage 2, you have heard अभी एक प्रभु जी ने बोला था, आपने बोला था शायद कि कॉल से भी हो जाता है, कॉल से भी पैसे उठ जाते हैं. यस, कॉल से उठ जाते हैं, इवन मिस कॉल से उठ जाते हैं. सो मिस कॉल से उठने के लिए भी एक सिस्टम है. उससे पहले आपका सब डेटा है. मिस कॉल वो इसलिए दे रहा है कि आप उसके फोन में अपना ई सिम ट्रांसफर कर रहे हैं. यू आर यूजिंग iOS, राइट? iOS में ई सिम यूज कर रहे हैं या नॉर्मल सिम? नॉर्मल सिम. सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ई सिम, राइट? ई सिम इज इलेक्ट्रॉनिक सिम. वर्चुअल सिम कार्ड नहीं होता, मैंने प्रैक्टिकल सिम कार्ड नहीं होता. उसमें एक कोड इंस्टॉल हो जाता है, उसमें टावर आता है, उसमें सब कुछ. नाउ ये फैसिलिटी सैमसंग के कुछ मोबाइल्स में है, कुछ टैब्स में है और आईफोन में है. एंड ट्रस्ट यू, एक आईफोन में 11 सिम हो सकते हैं. 11. उसमें 2 एक्टिव रह सकता है, बाकी 9 इनएक्टिव, बट हो सकते हैं. सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ टू मच इनकन्वीनियंस कि मैं आपका फोन क्लोन करके यूज कर लूँ. नाउ व्हेन आई बाई एन आईफोन, वी विल ऑल बाई समडे, तो क्या करते हैं हम लोग, जिनका 2 सिम कार्ड होता है, हम लोग ऑपरेटर्स के पास गए, भैया इसका ई सिम बना दो, वो तुरंत हो जाता है. अब जैसे हमारे तरह इंसान है, वो घर में बैठ के बनाना चाहेंगे, ऑपरेटर के पास कौन जाए, आलसी इंसान. तो वो क्या करेगा, ऑपरेटर को फोन करेगा. यू विल कॉल द हेल्पलाइन एंड यू विल ऑप्ट फॉर ई सिम. तो वो आपको लिंक भेजेंगे. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम हैपेंस. If your phone has compromised IP address, the link of your eSIM is also compromised. It is also shared with the scammers. मुझे आपका eSIM अगर मिल गया, अब बताओ मुझे, मैं फोन बैंकिंग से लेके क्या नहीं कर सकता. And trust me, you will also not know it. क्योंकि आप तो सोचोगे कि भाई मेरा तो सिम कार्ड चल रहा है. कोई ये सोचेगा कि मेरा सिम कार्ड सुबह उठ के डिसेबल देखूंगा मैं. वी डू नॉट इवन थिंक ऑफ इट इन आवर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स. नॉर्मली फोन रख के ही सोता है कि कल सुबह उठ के फोन कर लूंगा. वी नो द सिम कार्ड इज वर्किंग, बट वन मॉर्निंग यू वेक अप एंड यू सी ऑल योर मनी गॉन एंड योर सिम कार्ड ऑल्सो इज नॉट वर्किंग. प्लस व्हेन योर सिम कार्ड इज नॉट वर्किंग, यू आर नॉट इवन नोटिफाइड दैट योर मनी इज गॉन. सो दिस इज the third way. The fourth way, which is easier. मैंने, हाँ जी. For third way, the solution is not to use eSIM. No, please use eSIM. But eSIM का मतलब ये देखो, eSIM मैं और आप प्रेफर करेंगे. क्यों पता है?
आप मेरा फ़ोन चोरी करके ना कुछ नहीं कर पाओगे, ई सिम ना ही बंद कर पाओगे ना ही कुछ, ई सिम तो निकाला नहीं जा सकता, सो इट विल ऑलवेज बी कनेक्टेड। तो पकड़े तो आप जाओगे और ये डिवाइस भी मेरे को मिल जाएगा। ये एक पहला प्रो है, मतलब मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। अब दूसरा, ई सिम इज प्रैक्टिकली नॉट डैमेज्ड एवर अनलेस एंड अनटिल यू चेंज योर डिवाइस। तो दिस इज अ प्रो। कौन क्या है? कौन ये है कि वंस द कोड्स आर shared, then you have a problem, huge problem. अभी फोर्थ में जाता हूं। फोर्थ में आई हैव योर आइडेंटिटी, हाउ? बाय योर फोन नंबर, आई गॉट योर eSIM. Now I will take loan against your name. ठीक है? And trust me, all of everyone sitting out here, we know what is CIBIL score. तो सिबिल स्कोर के बिना पे लोन मिलता है। आजकल किसी का सिबिल स्कोर 600 से नीचे है नहीं, कम से कम 1 लाख रुपए तो निकल ही जाएगा एक एक नाम से। व्हाट एल्स? 1 लाख रुपए मतलब यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लाख in 10 minutes. Not bad. So yes, to safeguard ourselves, कोई भी आधार कार्ड यूज करने से पहले someone says must आधार, that is good option. Second option is use of M-Aadhaar application. It's used by Government of India. It is a Government of India application. M-Aadhaar. What are the pros and cons of using M-Aadhaar? पहली बात, फिजिकल कार्ड किसी के पास नहीं जाएगा। दूसरी बात, आप वहां से मास्ट कार्ड जनरेट करके ऑन स्पॉट दिखा सकते हो, वहां से जनरेट कर सकते हो। तीसरी बात, अगर आधार कार्ड है भी तो उसमें बायोमेट्रिक है, आप बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हो। वंस योर बायोमेट्रिक इज लॉक, आपके नाम पे सिम कार्ड तो इशू नहीं होगा। करेक्ट। एम आधार यू विल फाइंड इट iOS, एंड्रॉयड सब में। हाँ, बायोमेट्रिक लॉक लगा सकते हो। इवन आप अपने आधार कार्ड का लॉक लगा सकते हो, उसके जगह पे एक दूसरा नंबर आ जाएगा विच विल वर्क एज योर आधार नंबर, बट इट इज नॉट द ओरिजिनल आधार नंबर। उसे हम VID कहते हैं, वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। लास्टली, बिफोर कंप्लीटिंग द क्लास, आई विल टेल यू सम टिप्स ये है कि जब भी हम घर में हैं, एक VPN यूज करें। What is VPN? Anyone? Any idea? Virtual private network. What it does? ना अपने मोबाइल में। अगर हार्डवेयर VPN है तो बात अलग है। You are going into a very deep level. I'll tell you. Yes, actual IP address शेयर नहीं करता। उसका फायदा क्या है? तो उसको एक्चुअल IP एड्रेस आपके डिवाइस का पता नहीं होगा, वो बाहर के नेटवर्क से ही बात कर रहा है, वो तो आपके एक्चुअल डिवाइस को कभी हैक नहीं कर सकता। Right. There is one thing more known as DNS. What is DNS? Very good. So why do we need DNS? So when we know the the name, let's say google.com, translate it to IP address. But when we know the DNS, it will never translate into IP address. Sorry? When we know the DNS, will it translate into IP address? No, when we know it will not. Very good. So yes, using of DNS or using of VPN is very much necessary. I would not prefer DNS unless and until you are technically very sound. अगर technically sound हो तो DNS use करो, better than VPN. Relaxed. But if you are not technically that sound, please use VPN, and please use a paid VPN. Free कुछ नहीं होता. When it is free, remember you are the thing that is being sold. When it is free, it is us that is being sold. Nothing is free. Nothing in the world is free. Trust me. Okay, last. जब हम लोग बोल रहे हैं कि VPN यूज करेंगे तो सेफ रहेंगे, हम लोग फ्लाइट्स में जाते हैं, ट्रेन्स में जाते हैं, करेक्ट? We all use free Wi-Fi, don't we? Again, the word free.
फ्री में क्या होता है, ये इनका एक्सपीरियंस कुछ और होगा, मैं 4 चीज़ें बताता हूँ जो फ्री में हो सकता है। हाँ हाँ, वो इसी सारी की बात कर रहा हूँ। तो पहले जब हम लॉगिन करते हैं, इट सीम्स के इट्स अ बिट स्लो नेटवर्क कनेक्शन इवन दैन योर सिम कार्ड कनेक्शन। अगर मैं 2 नंबर पे जाऊं, malicious codes, malicious softwares are auto installed through your Wi-Fi when you use a free Wi-Fi. भारत सरकार लाई है भाई फ्री वाईफाई, यूज कर लो। इफ यू वांट टू स्क्रू योर हैप्पीनेस प्लीज डू इट, बट रिमेंबर वन थिंग, सरकारी वाईफाई इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार मैलिशियस कोड डाल रही है। ऑपरेट कौन कर रहा है? मैं और आप जैसे इंसान। जो वहां बैठ के ऑपरेट कर रहा है उस इंसान को, जैसे प्रभु जी आप, जैसे मान लीजिए आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, आप जब ऑपरेट कर रहे हो आपके हाथ में यूजर आईडी पासवर्ड सब कुछ है, तो आप अपने राउटर के थ्रू एम्बेड करके एक मैलवेयर छोड़ ही सकते हो ताकि आपके किसी नोन के कोचिंग सेंटर में लोग ज्यादा आए। दैट्स एन एडवेयर मैलवेयर का ही एक टाइप होता है, राइट? यू कैन रन द एड थ्रू योर वाईफाई। If I can run the ad, what is stopping me to run other applications as well? Understand this. Now each and every operator nowadays provide fast internet, 5G सबका हो गया है, अब तो वोडाफोन भी आ गया है। So if there is no Wi-Fi available, please use your network connections. It is better and safe. When we use the free Wi-Fi, the third thing is your identity is compromised. How? Every individual in this room is carrying a mobile phone, am I correct? Now every mobile phone that we have has a MAC address, a machine address. MAC address means machine address. So that machine address is very unique, like our thumbprints. It's very unique. तो आपका जो MAC address है, that will never match with me, और मेरा ना ही आपके साथ होगा. Though we are using iOS, but it will never match. Even the serial number is different of iOS devices. So ये सब connections मिलके एक total MAC address बनता है. The components of the hardware, the software that we are using, both patch up together to make a MAC address. The IP also, everything. तो उसमें इसीलिए we say please don't use a free Wi-Fi. And first and foremost, हम अपना चार्जर भूल जाते हैं बहुत जगह, and we use public chargers. Never. It's a no. पब्लिक वाईफाई तो फिर भी एक बार बोलूंगा, आपको बहुत जरूरत है, आपका डेटा खत्म हो चुका है, यूज कर लो 10 मिनट के लिए, देखा जाएगा जो होगा, लेकिन पब्लिक चार्जर कभी नहीं. अच्छा, आई थिंक आई हैव सम कॉर्ड ओवर हियर. या let's say it's a C-type, though it's HDMI, but let's say it's a C-type charger. ये सेक्शन देख रहे हैं हम, हर एक चार्जर में होता है. इस सेक्शन में एक चिप लगा हुआ होता है ताकि ओवरचार्ज ना करे. जो नॉर्मल C-type चार्जर्स आते हैं ना आईफोन के, कितने कॉस्टली होते हैं? इट इज बिकॉज देयर इज अ चिप जो ओवरचार्ज नहीं होने देती. रात भर हम लोग चार्ज करके फेंक रखते हैं, कुछ से पता कितना चार्ज हो रहा है कितना नहीं, बट ये ओवरचार्ज नहीं होने देती. सेम वे इस जगह पे वो चिप रिप्लेस करके अगर मैं सिर्फ ये चिप लगाऊं कि आपका आइडेंटिफिकेशन ले ले, इज इट पॉसिबल? यस और नो? एंड इट हैज हैपेंड मेनी अ टाइम्स. आप लोग जब एटीएम जाते हो, एटीएम में गवर्नमेंट दिखाती है ना, पहले चेक कर लेना कि आप कहाँ अपना कार्ड, एटीएम कार्ड डाल रहे हो, क्योंकि उसमें लगा हुआ होता है कार्ड स्किमर. Now the card skimmer is, it skims the card, it copies the data, it copies the number of your card, your CVV number, your expiry date, everything. अब वो तीनों मिल जाए तो और क्या चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग तो हो ही सकती है. So yes, this is almost it. Before I sign off, I would ask 2 things. First of all, was this small discussion, maybe of 1 or 20 minutes, did you gain something from it? Okay.
And what more would you like to discuss? On what? On this topic. What is it that you like to discuss more? Which part of it? How we can Security. Okay. You told that कि मतलब अगर आपको आधार से सब वो मिल जाता है, सिम मिलता है, तो ये छोटा फोन रखो, ये सेफ है। तो ये कनेक्शन नहीं समझ आया, छोटा फोन रखेंगे तभी बताता हूँ ना। सिम मिल सकता नहीं मिल सकता ना। है कैसे? ये इसमें 4G तो आता नहीं है अभी मैं 2G यूज़ कर रहा हूँ। तो 2G में 2G जो पोर्टल है उसमें नहीं होता ये, इट्स ऑब्सोलीट। डेटा वो ट्रांसफ़र करने में जितना टाइम लेगा उसके दौरान मैं फ़ोन काट दूंगा। 2G स्पीड अब के ज़माने में कंपेयर इट, इट्स फार सेफर। सेकेंड, हम लोग GPS यूज़ करते हैं अपने अपने स्मार्टफोन में, इट डजंट हैव अ GPS। If I don't want to be tracked, I'll use this. But yes, law enforcement can still track you down. ठीक है? And I don't want things to go beyond, but this is a safe way. I won't say कि आप 2 SIM कार्ड यूज़ करो, but 2 SIM कार्ड यूज़ करना प्रेफरेबल है। जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सोशल सर्कल में, वो एक और नंबर लो जिसमें कोई बैंक अकाउंट ना हो, कुछ ना हो। जो बैंक अकाउंट है वो फैमिली के लिए है, जिसमें बैंक अकाउंट अटैच्ड है, आधार कार्ड अटैच्ड है, वो फैमिली के लिए रखो। दैट वे यू आर सेफ। उस फोन में कोई भी अननोन कॉल मत उठाओ, उस फोन में अपना IP गार्ड करके रखो, उस फोन में। और हाँ, जो भी ऐप, जो भी फोन, जो भी एंड्रॉयड वर्जन या iOS वर्जन आप यूज कर रहे हो, प्लीज रिमेंबर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट शुड बी अपडेटेड, एवरीथिंग, ऑल एंड एवरीथिंग। The reason is, like for say Samsung, प्रभु जी सैमसंग हम लोग में से कितने लोग यूज करते हैं फोन? ओके, यू नो सैमसंग इज प्रोटेक्टेड बाय नॉक्स। नॉक्स इज अ सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, एक कंपनी भी है और वो टेक्नोलॉजी भी है, इट इज सिक्योर्ड। एप्पल का खुद का है, छोड़ दीजिए। वन प्लस का कोई और है। टेक्नोलॉजी एंड अदर थिंग्स आर टोटली डिफरेंट, बट ट्रस्ट मी, it will not work if you do not update it. First, updation. Second, mindfulness. You got to have your mindful while dealing with scammers, while dealing with hackers, everything. And please be safe. And before you sign off, So one question. yes, please. Like you suggested that it's better to keep a different SIM for Uh-huh. for Bank. accounts, Aadhaar, and etc. And Yes. other SIM for interaction. with- Absolutely. So would it help if both of these SIMs are in the same phone? Rather than in It different might phones? help. Depends on how mindful you are. No, but, would it help to any extent, or it would be just like using the same SIM? No. It would be helping. It would be helping. You need to understand आप help किस तरीके से चाहते हो. They help to fraud against me. That's Right. किस तरीके से, मतलब how would you counter that? मैं बताता हूँ। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेकंड फ़ोन का ना डेटा ऑफ कर दो, second SIM का. सेकंड सिम का जिसमें बैंक है उसका डेटा ऑफ कर दो, क्योंकि हाँ प्लीज़ आप ले लीजिए। तो वो डेटा ऑफ करने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि बैंक भी जब आपसे, बैंक एप्लीकेशन स्पेशली जब आपसे डील करता है तो सिर्फ SMS में डील करता है। आप चेक करना, जब आप लोग UPI का रजिस्ट्रेशन करते हो, इवन देन दे सेंड अ मैसेज, encrypted message to an encrypted number where you get an encrypted reply and your UPI is started. So yes, if you keep the data off, it works. Second phone का data off कर देना। तो UPI हाँ, अगर उसमें इंस्टॉल करते हैं उस फोन पे, तो UPI इंस्टॉल करने के लिए वो ये चेक करता है कि सेम सिम पे बैंक सिम है कि नहीं, सिम है कि नहीं, और सिम में बैंक है कि नहीं। It will not check whether you have data or not. अच्छा, that will not be needed. That will not be And needed. even अगर किसी बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो भी it will not ना, फर्स्ट सिम से डेटा चलाओ, सेकंड सिम तो चेक करेगा सेकंड सिम है। Yes. फाइनेंशियल फ्रॉड में मेरा एक क्वेश्चन ये है कि बैंक में जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता मैं 1 मिनट में आता हूँ आपके पास। हाँ जी। मेरे फोन में
वो आएगा नहीं, वो आएगा नहीं। अपने पर्सन पे इतना आता है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है, एक है CUG फोन जो हम लोग कहते हैं क्लोज्ड यूजर ग्रुप. नाउ द क्लोज्ड यूजर ग्रुप सिम कार्ड्स, व्हाट इट हैपेंस इज इट्स अ कॉर्पोरेट सिम कार्ड. वो अपना डेटा नहीं बेचते. और पर्सनल का हम लोग क्या करते हैं, भाई ये खरीदने गए, अच्छा मैडम यहाँ पे मेंबरशिप है, आप ले लोगे क्या? आपने क्या किया, आपने नंबर दिया, वो नंबर वो खुद के पास रखा, प्लस उसका जो वेंडर है उसके पास भी दिया. उसने आपके नंबर में अगेंस्ट में 10 रुपए उठाया उसको डेटा बेचने के लिए. सो ही इज सेलिंग यू मल्टीपल टाइम्स एंड वी डोंट नो इट. तो हम अपने सिम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हम अपने सिम का नंबर किसी से शेयर ना करें, किसी अननोन से. वैसे नंबर रखिए जो हमने बंद कर दिए हैं, मेंबरशिप ही तो लेनी है भाई. जैसे मैंने इसका रखा है, वी डू नॉट रिसीव कॉल्स ऑन दिस टैब, वी कैन नॉट, राइट, इट फील्स हैवी. सो उसमें क्या होगा, उसमें मैंने कॉल ऑफ करके रखा है. अब जिसको भी मेंबरशिप देना है किसी का नंबर दे दो, नंबर ही तो चाहिए, मैसेज ही तो आएगा, और तो कुछ नहीं. दैट्स इट. And please, if you are using Truecaller, block unknown calls. If you are not using Truecaller, you can block it from your dialer settings. Yeah. हो जाएगा. Yes, I would like you to give me a feedback on what you understood or what you took from the session and what we can improve on. Definitely. तो जो ट्रू कॉलर अननोन कॉल्स आपने बताया, तो एवरी अननोन कॉल इज ब्लॉक. Yes. तो फिर मतलब देयर कुड बी सम पीपल कॉलिंग यू. Why don't they message you before calling you? और It's a safe practice, isn't it? बट मान लीजिए, many people follow that, right? So they might not be able to understand नहीं, मेरा कॉल क्यों नहीं लगा. मान लीजिए कि मैं आपको फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि मेरे पास आपका नंबर नहीं है, करेक्ट? तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको पहले मैसेज कर दूंगा कि प्रभु जी आई वॉज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू. ठीक है, आप भी जान गए मैं कौन हूँ, इंट्रोडक्शन मेरा पहुँच गया. नाउ देयर इज, आप iOS यूज़ कर रहे हैं सर? तो iOS में हमारे पास तो अभी वॉइस मेल भी आ गई है, तो दैट इज सेफ, राइट? You know who is calling. I didn't pick up directly. It's not my thing. वो वॉइसमेल सर्वर में चला गया, वहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, and I'll know everything. ठीक है? So these are the things we should take care of. Now in case of, हाँ please. इन केस ऑफ मनोरंजन प्रभु, जैसे उन्होंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया था, सम अमाउंट वाज टेकन फ्रॉम हिज अकाउंट. Not from his account, from credit card, 3 credit cards. बट आफ्टर ही अनइंस्टॉल द अकाउंट लाइक दैट एप्लीकेशन, उसके बाद भी उनके डिफरेंट क्रेडिट कार्ड थे. सो लाइक हाउ, लाइक व्हाट. चलो I'll make you understand in one thing. आप जब खाते हो, how long do you think it's in your system? Nice. So जब हम कुछ इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, be it iOS, be it Android, हमारे मोबाइल में उसका एक कैश तैयार होता है. We all are aware of cache memories, right? And from that cache memory, it is installed into our firmware. Some cases, in some cases, not all. But for that to happen, the developer of that program has to be extremely intelligent. Because I'll be installing something in the firmware. In the firmware, we have to break the root. Once the root is broken, even if you factory reset it for 10 times, I will be able to gain your access. अच्छा, what is root? ये फिर भी मेरा सब्जेक्ट है नहीं. आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग. यहाँ पे हार्डवेयर है, यहाँ पे वी हैव शेल, राइट? वी ऑल अंडरस्टैंड शेल प्रोग्रामिंग, शेल्स. गुड. तो दैट शेल, विंडोज़ का भी शेल होता है. तो वो जो शेल होता है, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट मेड इन एंड्रॉयड और विंडोज और एनीथिंग. इट इज बेस्ड विथ कमांड लाइन्स. शेल को एक्सेस कमांड लाइन से ही ज़्यादा किया जाता है, और वो कमांड लाइन एक्सेस के लिए व्हाट वी डू इज वी यूज कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग. आप कुछ पूछ रहे थे प्रभु? फाइनेंशियल फ्रॉड का जैसे किसी के साथ हो जाता है तो बैंक जिम्मेवारी लेने से बचता है. हाँ, वो तो बचेगा, पैसे देने हैं उसे. हाँ, पैसे देने हैं.
एक्चुअली उसे पैसे क्यों देने हैं? मिस्टेक किसका था, मेरा या बैंक का? बैंक का, क्यों? क्योंकि उसने वर्चुअल के बेसिस पे पैसा निकाला है, वो थोड़ा सा नहीं, वर्चुअल के बेसिस पे क्यों निकाला है? क्योंकि वो तो आप भी निकाल सकते हो, आपने उसको एक्सेस दिया तभी ना। अच्छा। दूसरा है, मैं ये चीज़ बता दूं, यस ऑब्वियसली बैंक अपनी जिम्मेदारी से भागेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप ये भी जान लो, बैंक जिम्मेदारी लेने के लिए बाध्य है। रीजन इज इंडिया गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी। इफ यू रिपोर्ट अ फाइनेंशियल फ्रॉड विद इन 24 आवर्स, you are bound to get your money back. yes, that is the main concern is this within the And it has not to be to the bank. It has to be 1930 or local cyber police station. that is with the That's why they do digital address. Because then so No, whether not the even amount is digital. small or big, first you need to report to the police. Trust me, even if it is 5,000, they will not even bother about it. No, but it is not a matter of amount, it is a fraud. It is a fraud, but they will not be bothered about it. Trust me, it happens. Because it is India. Yeah. If it would have been 50 crores or 5 crores, They will. they would come to your house, have tea and work on it. I will give you one example. 2 years back I met with a fraud of 2000 rupees. हाँ I dialed 1930 हाँ हाँ and that gentleman just recorded nothing doing, but उसने मेरा नाम एड्रेस नोट कर लिया कि आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है। अच्छा, there are few steps I would like you to know. 1930 is the number you dial for cyber fraud or anyone abusing you over phone, anyone you are misutilizing your voice, your pictures, anything. That's the number you get help with. Second is contact your own bank. And third, if your own bank fails, then you have an RBI ombudsman. But that's after 30 days. ठीक है? First of all, in case of 1930, once you complain, you will get a complaint number. Second, it will say which police station your complaint has moved to. It will also give you your IO's number, investigation officer's number. Your IO will call you to register the physical complaint as well as take the complaints from there and then move forward. Own bank will ask you, ठीक है मैं अभी stop कर देता हूँ, cards block कर देता हूँ. Once it's done, half of the work is done. You will not lose more money. ठीक है? And the third, if your bank does not give you money back, please feel free, RBI Ombudsman, गूगल में जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ पे कंप्लेन लॉन्च कीजिए, बट इट हैज़ टू बी आफ्टर 30 days. 30 days. RBI will not tolerate or will not help you in case it is 29 days. 30 days के बाद ही वो आपको entertain करेगा. That too you have to be documented. आपने एक मान लीजिए पहले दिन गए, फिर तीसरे दिन गए, फिर लोकल रेगुलर आप फॉलो अप लेते हुए आ रहे हो, लेकिन बैंक कुछ भी नहीं बोल रहा है, टाल रहा है. आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मेल्स हैं, टोटल मिला के एक मेल आपको आरबीआई ओम्बड्समैन में डालना है. अच्छा, दूसरा अब इसका एक एग्जांपल है, बैंक के अकाउंट में सिक्योरिटी हमारी जैसे इंश्योरेंस 5 लाख का होता है, अमाउंट चाहे कितना हो, बैंक यदि कल को Good. फेल हो जाता है तो उसमें आपको 5 लाख से ज्यादा देगा. करेक्ट. ठीक है ना? अब आपके अकाउंट में करोड़ों पड़ा है, करोड़ों का कोई बैंक फेल हुआ है, जैसे हम रोज आए दिन न्यूज सुनते हैं कि बैंक फेल हो रहे हैं, ग्रामीण बैंक फलाना बैंक, तो उसका जो एक मुझे जो समझ आता है, आप बैंक अकाउंट जो है पोस्ट ऑफिस में खुलवाइए. पोस्ट ऑफिस इज आल्सो हैविंग ए सेविंग अकाउंट एंड दैट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हमारे घर में आई विल स्पेशली आस्क दिस टू द माता जीज, कितने ऑर्नामेंट्स हम बैंक लॉकर में रखते हैं? लाखों के, राइट? डू वी ऑल नो कि लाखों के ऑर्नामेंट्स जब हम बैंक के लॉकर में रखते हैं और वहां से अगर कोई चोरी होती है, हमें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी. देयर इज नो इंश्योरेंस फॉर इट, because lockers are built for papers and not for your other valuables. So in case of any natural calamity or theft from the bank locker, you will get zero. बट दैट इज व्हाट इसका मुझे एग्जांपल कुछ बुजुर्गों ने दिया कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, बैंक्स वर फेल्ड, लोगों का पैसा मर गया, कुछ लोग हिंदुस्तान आए, कुछ पाकिस्तान गए, लेकिन जिन लोगों का पैसा पोस्ट ऑफिस में था, चाहे वो हिंदुस्तान गए चाहे पाकिस्तान गए, उन
उनका सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, लेकिन जिनका बात सही है प्रभु, लेकिन अभी हाल ये है कि पोस्ट ऑफिस में इंसान तो क्या, चिड़िया भी नहीं बैठती अभी, हाँ प्रोब नहीं, वो बैठते हैं, बट उनका जो सिस्टम है ना वो कुछ और है। वो BSNL का यूज करते हाँ। हैं, वेरी बैड, दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इसलिए लोग पोस्ट ऑफिस में जाने से बचते हैं। आप उनका अदरवाइज जो काम बैंक में 4 लोग करते हैं वो पोस्ट ऑफिस में एक अकेला कलर करता है। I agree. एक और चीज, just for your information, when you are accessing any website which is government.gov.in.gov, any of those websites are strictly monitored, and anything that you try to do on it, even your mouse movements are recorded. So please deal accordingly when you access government websites. Cool? So you mentioned that ideally a financial fraud has to be first reported to 1930 or to Yes. some council. In case one doesn't do that and report to the bank directly, so bank will not मतलब be liable to बैंक बोलेगा आपके यहाँ हुआ है, इसका प्रूफ क्या है, कि आपको रिपोर्ट किया है, मतलब उसका क्या है। आप तो कुछ भी कर सकते हो, अपने भाई को बोल सकते हो पैसे उठाने, उसके बाद आप मेरे को रिपोर्ट कर सकते हो। व्हाट इज द प्रूफ? द प्रूफ इज ईदर यू गेट अ नोटरी ऑफ इट, उतना झमेला कौन करेगा, कोर्ट जाए, नोटरी करे, डिक्लेरेशन दे, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से ले, उससे बेहतर नहीं है कि हम ऑनलाइन एक 1930 से कॉल कर लें। एंड 1930 वर्क्स ऑन एनी लैंडलाइन, एनी मोबाइल, एनी नंबर, एनी ऑपरेटर। बट 1930 पे अगर आप 24 आवर्स के बाद रिपोर्ट करें तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। हाँ, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब आपको पैसों से अगर प्रेम है तो कृपया 24 घंटे से अंदर करें, अगर नहीं है तो हार्डली मैटर्स। हाँ, वो रिकवर हो जाती है, तुरंत हो जाती है रिकवर। आप जीपे में जाइए, जीपे में उसका एक जो ट्रांजैक्शन किए हैं वहाँ पे एक ऑप्शन है जो आप ना जिसको आप बोल रहे हैं कि आपने बाय मिस्टेक कर दिया होगा, टू रेज अ डिस्प्यूट, आई एम सॉरी, यस, टू रेज अ डिस्प्यूट, दैट यू कैन चूज एंड फ्रॉम देयर यू कैन रेज योर डिस्प्यूट। ये जब हो जाए तब आप अपने बैंक को भी बोलिएगा। ये गूगल पे है, गूगल पे इज नथिंग बट नॉट अ बैंक, इट्स अ प्लेटफॉर्म दैट इज यूजिंग योर बैंक सर्वर। सो गूगल पे के साथ साथ आप अपने बैंक को भी इन्फॉर्म कीजिएगा, आपका बैंक वो रिवर्स करेगा और गूगल पे उसका साथ देगा। दैट्स इट, रिवर्स करके विद इन 24 आवर्स आपके पास पहुंचा देगा। इन सम केसेस इट्स लॉन्गर, 24 आवर्स इज द मिनिमम टाइम, इन सम केसेस इट्स लॉन्गर। मेरा तो पेटीएम का हुआ था, बट दैट वाज इन अ ग्रुप, तो ग्रुप में वो थे व्यक्ति थे जो भी। अच्छा, हाँ, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जस्ट टू लेट यू नो, प्लीज़ लोभ में ना पड़े। कोई अगर बोलता है कि मैंने आपके अकाउंट में पैसे डाले हैं, हो सकता है डाले, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रॉड इन इट। एक, मैंने पर्सनली आपको मैसेज कर दिया कि मैंने आपको 10,000 रुपये भेजे हैं, फिर आप मेरे से वापस ले लो, ये एक फ्रॉड होता है। वो चिन्नी चोरी का होता है क्योंकि वो छोटा होता है। अब बड़ा का सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं इसलिए कि मैंने आपके अकाउंट में सच में 2,000 रुपये डाल दिए, मान लीजिए डाल दिए, आपको बोला कि गलती से चला गया, आपने मेरे को रिटर्न दे दो। कैसे रिटर्न दोगे? आप मेरे को उसी यूपीआई में वापस दे दो। कभी मत करना ये। आप ये बोलना कि बेटा एक काम कर, मेरा घर का एड्रेस ये है या फिर मेरा नज़दीकी थाना ये है, तुम थाने में आओ, हम पैसा लेके जाता हूँ, वहाँ पेमेंट ले लो, बस खत्म करो। आई एग्री, मुझे हराम का नहीं खाना, मुझे फ्री का नहीं खाना, यूपीआई टू यूपीआई नहीं नहीं, कभी नहीं करना है। इससे होता है आपका यूपीआई एड्रेस मेरे पास आ जाता है और मैं आपका यूपीआई एड्रेस ऐड कर सकता हूँ। जैसे स्कैमर है वो बोलेगा इस यूपीआई आईडी में डाल दो, तो वो यूपीआई आईडी से तो हम उसकी पूरी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हो आप? हम नहीं निकाल सकते, लेकिन निकाल तो सकते ही हैं। कहाँ? सब कुछ अगर हम शिकायत करेंगे तो फिर वो इतना मतलब क्यों करेगा? आपके पास फोन पे है कि गूगल पे? अच्छा, फोन पे के वीपीएन में देखिए तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, YBL, ओके SBI, ओके HDFC बैंक और ICICI। तो आप किस किस का पता करेंगे? वर्चुअल IDs and virtual networks can be changed any point of time. Why to depend on that?
एंड इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस. इट डज, अल्टीमेटली इट डज, बट प्रिकॉशन हम किस लिए लेते हैं? ताकि हमारा टाइम पैसा दोनों बचे. मिनिस्टर का पैसा याद है? क्या? 75 लाख रुपीस. हाँ. मिनिस्टर का. ये केसेस आते जाते हैं, सो इट्स नथिंग. यस प्लीज. मेरे पास कल भी एक कॉल आई थी. हम्म. मैं ऑफिस में काम करता, आईटी में हूँ अभी. तो कहाँ पे हैं आप? मैं गुड़गांव डीलर केसरी में हूँ, ऑब्सलीप का प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ. ओके. तो मेरे पास कॉल आई थी कल तो कि आप मैं इनकम टैक्स ऑफिसर से बात कर रही हूँ. मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था. अभी कल रिसेंटली है, इससे पहले मैंने बहुत देखा कंपनी में कई मेरे एम्प्लॉइज़ के पास भी उनके पास कॉल कहीं या कुछ या डेटा भी कहीं से लीक हुआ है, वो तो चल रही है इन्वेस्टिगेशन. तो मेरे पास कल कॉल आई कि आप किसी अपनी कंपनी में सीए या फिर किसी सीएफओ से बात करा दीजिए और हम इनकम टैक्स ऑफिसर से बात करें. मैंने पहले आपको मेरा नंबर आ गया, ठीक है, मैं हूँ किसी और डिपार्टमेंट में आईटी का, आपको कहाँ से मिला नंबर? तो कह रही नहीं आप जल्दी बात करवाइए और आपका जो कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है. मैंने बोला सीएफओ बात करो, बताइए. उसके बाद ऐसी थोड़ी बहस चली. उसके बाद कहीं बाहर में जाओ, फोन रखो तुम. तो एक्चुअली मैंने और उसके बाद मुझे से कॉल लगा कर कॉल लगी नहीं. लगेगा नहीं. और इसके पहले बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जैसे एम्प्लॉई के पास मैसेज चला जाता है कि मतलब कंपनी के सीईओ के नाम से, सीईओ के नाम से चला जाता है. जैसे मैं बोल रहा था कि आइडेंटिटी थेफ्ट, सीईओ का नंबर से और नाम से मैं कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भेज रहा हूँ कि भाई मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, मेरे को 2000 रुपये भेजो. मेरे एम्प्लॉयज़ है 2000 और मैंने 2000 करके पैसे उठा लिए. तो आई एम अ रिच गाय. क्यों जज के साथ हो गया ये? अभी आगे रिसेंट है, हमारे घर में है, जज है, उनके साथ हुआ ये. प्रूव ऐसे है. सिटिंग हाँ. सीईओ का नाम लिखा होगा, नंबर पड़ेगा कि मैं बात कर मेरे रहा नाम हूँ से पैसे और मत देना. उसका एक्चुअल व्हाट्सएप ओपन करेंगे उसमें भी नाम वही लिखा होगा. जो आगे एब्सोल्युटली. उसका एडिट नहीं कर सकता कोई. वो आज तरीके से नाम रखते उसमें नाम लिखा होगा. अभी तो सरकार ने बंद कर दिया है, नहीं तो पहले हमारे व्हाट्सएप में दिल्ली पुलिस का पिक्चर लगा के बहुत लोगों ने, माने बहुत स्कैमर्स ने बहुतों को लूटा है. ठीक है. आर्मी वाला सिस्टम. आर्मी वाला सिस्टम कुछ और है, उसको कहते हैं हम OLX स्कैम. ठीक है. आपको कुछ बेचना है तो आपको मैं पैसे भेजूंगा, पैसे भेजने के नाम पे आपको लूटूंगा. सिंपल. अदर वे अराउंड इट ऑल्सो वर्क्स. मुझे कुछ बेचना है, आप फ़ोन कर रहे हो एज आर्मी वाला, अरे मैंने आपको पैसे भेज दिए, आप मेरे को ये रिटर्न कर दो. इट वर्क्स बोथ वेज. Emotional blackmailing, I won't call it a financial fraud. It's emotional fraud. Because you are emotionally available to others, I cannot comment on that. And it's not a crime, it's not a criminal offense. Lending it to someone is not a criminal offense. I might seriously be in need. You as a friend, if you are lending it to me, it's my social duty. It's not a duty which is bound by law. It's a social duty to return it to you. ठीक है. Taking a loan or giving a loan is not a crime. But when you take it unlawfully, that is a crime. उसमें कभी नहीं सेंड करना है. वो आपका UPI ID जब आप सेंड करते हो, वो आपका डिटेल्स मिलता है. अच्छा, डू यू नो एवरीथिंग दैट वी डू online creates a metadata. So if your metadata contains your details, that's all I need. Trust me. तो इस तरह से तो फिर यूपीआई ट्रांजैक्शन कोई भी नहीं करना चाहिए. हाँ, करना चाहिए. UPI ट्रांजैक्शन आप करो, लेकिन UPI ट्रांजैक्शन करने के टाइम में 3 चीज़ों का ख्याल रखो. फर्स्ट, QR पेमेंट करने के टाइम में वेरीफाई विच नेम यू आर सेंडिंग इट टू. सेकेंड, if you are sending it through UPI ID, trust me, it is recorded. So if it's a fraud, it can be taken back. But in your case, if you send me, I have sent you 2000 and I have asked it's by mistake, so you send me 2000 and I take your UPI and use it for 20,000. तो 22,000 रुपये ऑलरेडी मेरे अकाउंट में आ गया, मैंने उसे उठा लिया. अब बैंक क्या करेगा? खाली अकाउंट से पैसे लेगा? सोच लो. I took your money and I have spent it. तो बैंक कैसे रिवर्स करेगा? 20,000 कैसे लेगा वो? मतलब just by knowing your UPI ID. Yes, 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 you can. Yes. Depends. You and I cannot. You cannot. You cannot. But yes, you can.
आप ना एक काम करो, गूगल में जामतारा बोल के एक सिटी है, उसके बारे में पहले सीखो। उसमें 10 साल के बच्चे से चालू होता है इनकम करना। 10 साल के बच्चे से इनकम करना चालू होता है, और वो कैसे इनकम करते हैं? स्कैम करके। द ओनली थिंग, यस प्लीज, आप कुछ पूछ रहे थे प्रभु। तो वो सीन है कि टिल 60 years एंड फ्रॉम 10 years उनका बिजनेस ये है। उनके पास क्या नहीं है? उनके पास BMW कार है, सब कुछ है, और वो आपका हमारा पैसे से ही आया है। ये कहीं झारखंड वगैरह में कहीं कोई हाँ, जामतारा। जामतारा इज नाउ अ बैकवर्ड क्लास। अभी हम जाएंगे आसनसोल और दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में। कौन सा? नूज के पार, नूज के पार। मांस जैसे अगर यूपीआई अगर हम किसी को कर रहे हैं, इट इज नॉट सेफ, तो वी आर यूजिंग यूपीआई इन आवर एवरीडे यूजेस। तो कभी कभी हम स्कैनर चलता नहीं है तो बोलते कि आप हमारे नंबर पे सेंड कर लीजिए। तो हाउ सेफ इज दैट? It is safe when you know the person. In my case, I don't use UPI. he does not has he does I don't have net banking. I don't use UPI. I prefer cash. If it is not cash, then I do it through her with minimum balance, so that it's better safe than sorry. Because I know I'll get it back. I know people, I have network, I have reach, fine. But why to waste time? That time I'll invest in studying, that time I'll invest in training. So, yes, this is something which I would not say, I would not recommend. Because living a life like me, it's tough. living a life like me. I have his UPI, I use UPI, so I don't use WhatsApp. So ये हमारा bargain है कि he will not use UPI, I will not use WhatsApp. I don't have WhatsApp. Or we can have another number which has a WhatsApp. Yeah. That's the same reason that I used to call people in Bihar, because I've been frequently traveling to Bihar because of my previous company. They used to tell me कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा WhatsApp नंबर है। अलग है। मोबाइल नंबर is they are so smart. They are very close to Jamtara, na? They are bound to be smart. You have to call the call. This is also I'm getting today now. Like कि क्या बोलते हैं, ये मेरा WhatsApp नंबर है। Of course. And trust me, I don't mean to insult anyone who is from Bihar, but UP, Bihar and Bengal, these three states produce the most intellectual people in India. Be it in a wrong way or a good way. You see all the IAS, IPS officers, these states. It's obviously worth something. Yes, please. तो ये इस टाइप के मैसेज भी बहुत कॉमनली आते हैं व्हाट्सएप पे। जैसे? Amazon लकी ड्रॉ। हाँ हाँ, ये Amazon लॉटरी। हाँ, लॉटरी। ये वर्जन आप जीत जाओगे अगर आप 10 ग्रुप्स में शेयर करो तो। अच्छा। और मैंने देखा है लोग शेयर भी करते हैं, इवन डिवोटीज। ये दोनों Instagram में एक है लॉटरी, दूसरा है फेक लोन, ठीक है, तीसरा है जॉब। ये 3 स्कैम्स 1980s से थे, तब ऑफलाइन थे, अब ऑनलाइन आ गए हैं। हाँ, नहीं रेटिंग वाला स्कैम हम लोग क्या करते थे, रेटिंग वाला स्कैम, मेरा एक छोटा सा क्लर्क था, तो मैंने उसे ट्रेन किया था। उसने स्कैमर्स को स्कैम कर दिया, बहुत बार करता है वो। उसी स्कैमर के ताल में रहता है जो लॉटरी के लिए पैसे देते हैं, कुछ टाइम के लिए देते हैं और वो लेता रहता है। जब वो अमाउंट बड़ा हो जाता है और ये मांगते हैं, वो बंद कर देता है, तो उसका इनकम भी हो गया। सो यू गॉट टू बी स्मार्ट every time, and that is why I say you got to be really mindful about it. 2-3 बार 4 बार तक उसको देखते हैं कि जब ये फंस जाएगा उसका हाँ 1000-3000 तक देगा, तो 1000-3000 is the limit wherein you can earn. Next that person will earn. वो किसी और को कम से कम 20,000, 30,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक का स्कैम करते हैं। Yes, क्योंकि वो एक प्लान देते हैं कि आप ये वाला प्लान लोगे तो नेक्स्ट वाला, फिर उसमें रोक देते हैं फिर obviously. फिर उसका नेक्स्ट और ये मेनली टेलीग्राम से होता है, क्योंकि उस पे फ़ोन नंबर भी आप नहीं देख सकते। व्हाट्सएप में तो फ़ोन नंबर आप देख सकते हो, आप वो उसको थ्रेड भी दे सकते हो, मान लो रजिस्टर कर लो कंप्लेन आ गई। टेलीग्राम में तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। नहीं, बिना फोन नंबर के होता है। There are many apps which doesn't need phone number. नहीं, हमारे यूजुअल तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम
कर दो, हम्म। व्हाट्सएप पे पहले फर्स्ट पर्सन आपको करता है, फिर आपको ले जाता है टेलीग्राम में। टेलीग्राम हमारे लिए भी यूजलेस होता है, कोई अदर ऐप वो बोलेगा तो हम सेंसिटिव हो जाते हैं कि पता नहीं अपना ऐप बोल रहा है क्या कुछ। There are few apps like Silenced, like there are one more app which is nowadays, उसमें IP address भी नहीं होता है. Signal, yeah. उसमें IP address भी trace नहीं होता है. Signal, Silenced, both are them. अभी आपने ईमेल आईडी ली है वो सही है। हाँ हाँ. मेरा After the session I am like We are scared to, to share our phone share numbers. a That's great. That means this training is very fruitful. okay. Congratulations. One number and email address आप Congratulations. It is as safe as the government. So I don't give you any guarantee that it will be misused from other sources or not, but not from my sources. I don't have a company. I don't deal in people. I deal in offices. So yes,